Namaste and welcome everyone to Healing M&D India. Revati ma'am, am I audible? Yes, you're audible. All right, thank you. तो आप सबको हीलिंग M&D इंडिया की आज के सत्र में स्वागत है. Welcome everyone to Healing M&D India. If you want to join Healing M&D India, these are the contact numbers or email ID. Is my presentation visible? Yes, it's visible. Right, thank you. It will take only 2-3 minutes. Sure. You may continue. Basically, Healing M&D India is trying to heal the world by improving the quality of life. हम आपके सभी के क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना चाहते हैं. ज़्यादातर न्यूरो बीमारियां हैं, एमएनडी, एएलएस, अटेक्सिया, स्ट्रोक, पार्किंसन, अलग अलग बहुत सारी बीमारियां हैं. तो हम इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने में हम ट्राई कर रहे हैं. प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर. ये हमारे मंजूनाथ जी का फेवरेट. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Basically, ALS stands for amyotrophic lateral sclerosis. MND stands for motor neuron disease. और हमारे लिए MND का मतलब है मैं नहीं डरता. Mind never dies. Music and dance. Memories never die. So Healing M&D India is striving to do all these things. Healing M&D India इस सभी कार्यों में काम कर रही है. आज जैसे हमने स्पेशलिस्ट और गेस्ट स्पीकर रेवती मैम को इनवाइट किया है, ऐसे हम अलग अलग कार्य काम करते रहते हैं. We are associated with Healing ALS advocates from USA. लास्ट ईयर हीलिंग ALS वाले मेरे घर पे आए थे. ये तब का फोटो. ये हमारे डॉक्टर जवाहर शाह है, जिनको बल्बर एमडी हुआ था. उनकी आवाज ऑलमोस्ट 80% चली गई थी. भी वो आराम से अच्छी तरह बोल पाते हैं और अपना हाथों पैरों से 2 व्हीलर भी चला रहे और 4 व्हीलर भी चला रहे. ये हमारे मंजूनाथ जी है बेंगलोर से. ये भी बल्बर ALS हुआ था, ये भी रिवर्स कर रहे हैं. ये हमारे मित्र बहुत खास अमरावती से देवेंद्र रजूस्कर जी. इनको स्पोरेडिक MND ALS था, ये भी रिवर्स कर रहे हैं. और ये सबसे बड़ा रिवर्सल है मुस्कान गर्ग, जिनको 13 साल की उम्र में जुवेनाइल MND हुआ था. इन्होंने अपनी बीमारी को हरा दिया. ये वेंटिलेटर, बाईपैप और फीडिंग ट्यूब पे थे. आप देख सकते हैं स्कॉट भाई साहब के बाजू में जो चश्मा पहने लड़की है, वो मुस्कान कर है. आज वो 20 साल की है, बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं. ये मुस्कान के पुराने फोटो हैं.
आज के सत्र में I would like to thank Revati ma'am for giving us time and explained us the thing about our thesis. रेवती मैम का हम बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने अपना टाइम निकाला हमें ग्रुप के सभी ग्रुप वालों को जानकारी देने के लिए। तो The pleasure is all mine, Mr. Pinakin. ये मेरा कर्तव्य तो डेफिनेटली है कि मैं आप सबको बताऊं कि स्पीच थेरेपी से कितना इम्प्रूवमेंट होगा, बट आई थिंक बिफोर दैट आई हैव टू ऑनर ऑल ऑफ यू एएलएस वॉरियर्स। आप इतने अच्छे से आप खुद को संभाल पा रहे हो, खुद के लिए एडवोकेट कर पा रहे हो, खुद के लिए इतने टेक्निक्स निकाल पा रहे हो। वी आर जस्ट अ टूल टू हेल्प यू कम्युनिकेट, लेकिन आप रियल वॉरियर्स हैं। एंड ये जब मैं पिनाकिन आ, से मिली थी, मिस्टर पिनाकिन से उनके घर पे, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी स्पोक अबाउट, उससे मुझे क्लैरिटी मिल गया था कि वी are just a tool to help you communicate, but you guys are doing much, much more, and the world should study the strength and resilience with which you stand up in this world and decide कि नहीं, हमें हमारे लिए एक better जिंदगी चाहिए. So that is something which is commendable. So I'm very happy about that. And like you said, happy therapy, खुश रहना is the main therapy for anything and everything, which is true. Scientifically prove हुआ है that the more you are willing to live, that is the way your body responds as well. That is true. So I'm happy to know that that is being carried forward. So I think we can start. Are all these participants, this is the maximum participants we're expecting? ma'am, other people are joining. You can start the meeting. We'll put this on YouTube, or other people will join and they will communicate with you. All right, no worry. Okay, so hi. First of all, introduction. The very kind Mr. Pinakin has already given a very beautiful introduction for me, but I still like to introduce. So I am Revati Jain. I am a master student. मैं एक master student हूँ नायर हॉस्पिटल में, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास में. It's a government hospital, one of the biggest hospitals in Mumbai and India as well. So I'm happy to be doing a study under the guidance of my HOD. हमारे HOD जी है डॉक्टर ज्योति मोहिते, एंड उनके जो हस्बैंड है शैलेश मोहिते, ही इज द डीन ऑफ नायर हॉस्पिटल. तो आई एम डूइंग द स्टडी अंडर डॉक्टर ज्योति मोहिते. हम एक ऐसा स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि डिजार्थ्रिया पीपल, यानी डिजार्थ्रिया यानी कि आपने जैसे कि बोला मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर के कारण डिजार्थ्रिया होता है. डिजार्थ्रिया एक स्पीच क्लैरिटी का इशू है, जहाँ पर आप जो बोल रहे हो उसका क्लैरिटी काफी कम हो जाता है. अभी हर डिजार्थ्रिया पेशेंट का जो है वो डिग्री सिवियरिटी सबका अलग अलग होता है. एएलएस में भी अलग अलग सिवियरिटी होता है, किसी किसी लोगों को ज्यादा अफेक्ट होता है, किसी किसी को कम अफेक्ट होता है. लेकिन एक कॉमन ट्रेंड मैंने देखा है, जिनको बोलने के क्लैरिटी में इशू है, नॉट जस्ट इन डिजार्थ्रिया पेशेंट, जिनको अदरवाइज भी सुनने के तकलीफ के कारण स्पीच क्लैरिटी इशू है, या फिर कैंसर हो गया है और कुछ यहाँ पर एक पार्ट निकल गया है, उनके उसके कारण स्पीच की क्लैरिटी में इशू है. ये सब पेशेंट्स में मैंने एक चीज कॉमन देखा है, विच इज रिफ्यूजल टू स्पीक अप बिकॉज सामने वाला समझेगा नहीं. मैं क्यों बात करने की कोशिश करूँ, या फिर क्यों आगे बोलने का थेरेपी ज्यादा लूँ जब सामने वाले को पेशेंस ही नहीं है मेरी बात सुनने का. सो दैट इज वन ऑफ द कोर इश्यूज दैट आई सीन, जो हर एक पेशेंट में मैंने देखा है जिनको बोलने में क्लैरिटी में इशू है. अभी मेरा टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट है जो दो दो शब्द का पैर एक साथ रीड करके आपको पता चलेगा कि आपको किस साउंड में क्लैरिटी में इशू है. अभी हमने मिस्टर पिनाकिन शाह के सेशन जब मैंने लिया था, मिस्टर पिनाकिन शाह के इसमें हमें मैक्सिमम क्लैरिटी तो सही था, लेकिन बस एक कॉन्ट्रास्ट में था जिनको उसमें इशू था, जो आपका जब बारी आएगा, आपका जब मैं सेशन लूंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके कौन से साउंड में एरर है. तो अभी उन्हें पता है कि जब वो बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर साउंड के वर्ड्स में उनको एक्स्ट्रा फोकस करना है, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी डालना है या अटेंशन देना है, तो जिसके कारण उनका स्पीच क्लैरिटी बढ़ जाएगा. ऐसे ही आप सबका पार्टिसिपेशन अगर मैं ले सकती हूँ, आपका पार्टिसिपेशन मैं अज्यूम कर सकती हूँ, तो आप सबका अभी मैं स्पीच का क्लैरिटी कौन से साउंड में एरर आ रहा है ये मैं आपको बता सकती हूँ, और आप आगे स्पीच थेरेपी में उसे फोकस कर सकते हैं. ओके.
ठीक है। तो मैं अपने टेस्ट का जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगी कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं, जो डिजार्थ्रिया के पेशेंट्स होते हैं, एएलएस में भी, एमएनडी में भी, अलग अलग जो टाइप है। हमारे हॉस्पिटल में जीबीएस पेशेंट भी है, गिलन बेयर सिंड्रोम, वो भी एक मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो होते हैं, उनका मैंने और एक ट्रेंड देखा है कि वो जब शब्द रीड करते हैं, एक एक शब्द, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन वही शब्द को अगर हम जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, तभी उनको बोलने में, क्लैरिटी में इशू आता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही सांस में बहुत सारा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो नहीं बन पाता। या फिर हम कन्वे करने का कोशिश करते हैं, तो शुरुआत का क्लियर होता है, आगे आगे का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो सामने वाले वापस पूछते, आपने ये शब्द क्या बोला, वापस बोलो, हमें समझा नहीं। आपने आगे का सेंटेंस क्या बोला, वापस बोलो, हमें समझा नहीं। तो ऐसे थोड़ा सा इशू होता है, जो स्पीच के कॉन्वर्जेशन के टाइम पे, बातचीत के टाइम पर प्रॉब्लम ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू वर्ड रीडिंग। तो मेरा टेस्ट जो है वो टू वर्ड रीडिंग पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, दो दो वर्ड एक साथ बोलते हैं या तीन तीन वर्ड एक साथ बात करते हैं, हमारे ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग होता है कि इतने इतने साउंड स्टोर्ड है और ये साउंड हमें बोलना है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे मसल्स में वो स्ट्रेंथ होता नहीं है कि इतने सारे सिग्नल्स जो ब्रेन भेज रहे हैं कि ये साउंड के बाद ये साउंड बोलना है, ये साउंड के बाद ये साउंड बोलना है। और हर साउंड के इसमें हमारा होठ का पोजीशन अलग होता है, हमारी जीभ का पोजीशन अलग होता है, हमारे जॉ का पोजीशन अलग होता है। तो ये सारे पोजीशंस को फास्ट फास्ट चेंज करने में बहुत दिक्कत आता है। उसी का ट्रेनिंग भी हम स्पीच थेरेपी में देते हैं कि हमारे मसल्स का जो है वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा है, हम बढ़ा सकते हैं। हमारा रेंज ऑफ मोशन, यानी कि कितना दूर तक हमारा लिप स्ट्रेच कर सकता है, जीभ बाहर आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये सब ओवरऑल जो हमारा रेंज ऑफ मोशन या स्ट्रेंथ, जो ताकत होता है सारे मसल्स का। हम बात करते वक्त हमारा कौन सा मसल्स काम में आता है? हमारा चीक्स, होठ, जीभ, जॉ, मेनली यही। और अगर आप मुंह खोलेंगे तो पीछे जो हमारा तालू है, तालू के पीछे का जो सॉफ्ट मसल होता है, वो भी ऊपर नीचे जाता है। वो ऊपर नीचे जाता है, उसके कारण हमारा नाक वाला साउंड, जैसे कि म, न, और मुंह से निकलने वाले मेजर जो साउंड्स है, मुंह से ज्यादा एनर्जी निकलने वाले प, ब, त, द, और नाक से ज्यादा एनर्जी निकलने वाले म, न, इसमें जो फर्क होता है, अंतर होता है, वो पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं हम इंग्लिश में, उससे आता है। वही सॉफ्ट पैलेट का और एक फंक्शन होता है swallowing, या फिर है निगलना। अगर वो ढंग से बंद नहीं हुआ तो पानी, खाना जो भी है वो नाक के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है। तो ऐसे काफी मसल्स है जो एक साथ काम करते हैं, और वो इतने स्पीड में काम करते हैं कि हमें कॉन्शियसली बोल ध्यान नहीं देना पड़ता है कि अच्छा, मैं ऐसे साउंड बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसे होठ रखना है, ऐसे जीभ रखना है। वो फास्ट फास्ट हो जाता है। लेकिन एएलएस पेशेंट्स में क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेशन थोड़ा खराब हो जाता है, डिस ब्रेक डाउन होता है। तो वो कोऑर्डिनेशन को वापस ट्रैक में कैसे लेकर आना है, और वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमारा स्पीच का क्लैरिटी कैसे बढ़ाना है, वो सब हम स्पीच थेरेपी में टारगेट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूंगी ऑडियंस में से, आप सब में से किसको स्पीच के क्लैरिटी में इश्यूज ज्यादा लगता है, मुझे कोई बताएगा? One one second, I will give श्योर them श्योर। option to unmute. मैम, और हमारे ग्रुप में अभी अटेक्सिया पेशेंट भी हैं जिनको भी स्पीच में प्रॉब्लम है। तो मैंने सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर ओके। आप अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे तो आप अपने बारे में बताइए और आपका स्पीच का सैंपल दीजिए। अटैक्सिया हेलो पेशेंट मैडम। कौन है? जसपाल कौर? हेलो। सुजीत परदेशी? कौन सुजीत परदेशी हाँ, बात कर? अटेक्सिया में मुझे नहीं है, मेरे बेटे को है। ओके, बताइए। एटाक्सिया जैसे मुझे उसको ना है। रात को स्लीप का बहुत प्रॉब्लम होता है। सोते वक्त? हाँ, स्लीप मतलब बहुत बार ब्रेक होता है, और सपने बहुत ज्यादा आते हैं। माइंड मतलब चलता रहता है पूरा समय, मतलब थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, और सपने इसलिए बहुत होते हैं, और रात को नींद अच्छी नहीं होती है। ओके, आप मुझे उनके स्पीच के बारे में थोड़ा बताएंगे? उनका बोलने का जो उच्चारण है, वो उच्चारण कितना स्पष्ट हम्म। है? कुछ साउंड गलत हो जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है क्या? जैसे कि हाँ, ताली साउंड को तो पाली स्लर। कर दें।
स्लर होती है, वॉइस स्लर हो जाती है, जैसे मतलब मुंह में थूक रहती है और बात करते हैं ना, उस टाइप हाँ, की आवाज रहती है। अच्छा, मुझे उनसे बात कराएंगे अभी वीडियो वो पर। नहीं है अभी तो। अच्छा, ओके, ठीक है। आप जी मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है मिस्टर पिनाकिन आपसे आप सबसे ग्रुप में शेयर कर देंगे बाद में, तो मुझसे जी। कांटेक्ट कर लीजिए तो और आपको मैं ओ और डिटेल में बता सकती हूँ। ये थूक का प्रॉब्लम जो है, क्योंकि उन्हें अंदर फील नहीं हो रहा है, तो वो फील नहीं हो रहा तो कैसे अब उनका टेम्परेचर से थेरेपी देना है, प्रेशर से थेरेपी देना है, अलग अलग टेक्निक्स है उसके। तो उससे थूक का जो है मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, और उनका जो मुंह के अंदर जो मसल उधर इधर ढंग से हिलता नहीं है, जिसके कारण क्लैरिटी में इशू आता है, उसका भी थेरेपी मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, आप खाली स्पीच थेरेपी का ही बता रहे हैं? हाँ, और स्पीच जैसे थेरेपी की बात कर रही हूँ। मैं स्पीच पैर थेरेपिस्ट वगैरह, हूँ, नायर हॉस्पिटल स्पीच, से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा स्पीच लैंग्वेज, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी इंटरैक्टिंग। थैंक यू। धन्यवाद। अभी सुदेवता जी आप बताइए, उनको भी अटैक से है। हाँ, हेलो मैडम, हेलो, बताइए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, मेरा एज 40 इयर्स का है और मुझे लगभग 13 इयर्स से मैंने एरेक्सिया है। मेरी जो समस्या है वो है, मैंने बात में कर सकती हूँ, लेकिन जो बड़ी सेंटेंस है उसे एक बार बोलने में दिक्कत होती है। वो छोड़ छोड़ के थम थम के बोलने पर मैं समझ जाती हूँ। अच्छा, आप जब बोलते हैं तो कुछ कुछ साउंड्स उधर इधर हो जाता है, कुछ कुछ हाँ साउंड्स आगे पीछे हो जाता है। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। ओके। आप आपका मदर टंग क्या है? बंगाली, वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये जब से आपको ये कब प्रॉब्लम पहले आपको पता चला है, डिटेक्ट हुआ है? अब मैं जब 27 का था। अच्छा, 27 ईयर्स के, और करंटली आप कितने, 40? 40, ओनली 40 था। ठीक। 2013 में मुझे मालूम हुआ, अभी 2026। ओके, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आप जैसे जैसे यानी कि साल जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका तकलीफ और बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं जो स्वास्थ्य जी जे अटैक से अवेयरनेस सोसाइटी नाम की एक जो हमारी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें हम मैंने 5 या 6 साल से स्पीकर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए अभी तक ठीक है। वेरी गुड। आप स्पीच थेरेपी ले रहे हैं मतलब हाँ कंटिन्यूसली? हाँ हाँ, ले जाओ। ओके। और स्पीच थेरेपी का असर आपको दिख रहा है, आप बोल रहे हैं, हाँ करेक्ट? हाँ पहले हाँ आपका हाँ और भी हाँ खराब था हाँ, स्पीच, अभी मैं लेकिन समझ में आ रहा है, मुझे तो सब क्लियरली समझ में आ रहा है। बस आप मैं जब भी, बोल रहे हो वो थोड़ा खींच खींच के आ रहा है, बराबर? हाँ, मैं 3 या 4 साल पहले मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोले हूँ। तो दूसरे ओके, लोग तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे भी ओके। नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन चलने की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अभी। अच्छा, तो आपका स्पीच इम्प्रूव हो गया है, लेकिन चलने में अभी भी दिक्कत है, ये बोल रहे हाँ, हैं ना आप? चलने में बहुत दिक्कत होती है। ओके, आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ उसके लिए? हाँ, धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप ये कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आपका स्पीच में स्पेसिफिकली आपको कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, ये मैं आपके साथ सेशन लूंगी तभी आपको बता देती हूँ। सांस लेने में दिक्कत लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं। सांस लेने एक बार जोर से फूंक मारिए, ऐसे। आपको मेरा आवाज आया जब मैंने फूंक मारा तो? हाँ, आपको ऐसे ही फूंक मारना है और मुझे आवाज आना चाहिए, ठीक है? ऐसे। ओके, गुड, ठीक है। और भी दो तीन और जांच अच्छा, है। मैं और एक जिनिस आपको बोलना चाहता हूँ। हम्म।
कि स्पेसिफिक का जो सेशन है वहां पर जो तीनों बलों से जो प्रेशर क्रिएट उसको क्या बोलते हैं, तीनों बल है उसको फूक करके उठाना हाँ, होता है। स्पायरोमीटर हाँ, की बात कर पर रहे हैं मुझे ना। तीनों ही बल में उठा सकती हूँ। वेरी गुड, पूरा ऊपर तक जाता है तीनों बॉल। हाँ, पूरे ऊपर तक। शाबाश, तो आपका वैसे तो स्ट्रेंथ है। और एक मशीन आता है उसको ईएमएसटी बोलते हैं। वैसे ब्लू या ग्रीन कलर का आता है, ग्रीन कलर का कम पावर वाला रहता है। उसको घुमा घुमा के हम उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं और हमारे सांस लेने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लंग्स के लिए हाँ, जैसे कि एक वर्कआउट है। लंग्स के जैसे हम हाथ के लिए वेट उठाते हैं, फिजियोथेरेपी में हाँ, अलग अलग करते हैं, वैसे हमारे लंग्स के लिए जो वर्कआउट है वो हाँ, स्पायरोमीटर, ईएमएसटी, ये सब से हो जाता है। लेकिन आप ऑलरेडी अच्छा। काफी अच्छा करे, आपका इम्प्रूवमेंट तो है, आप जैसे बोल रहे हो। बाकी जांच के ठीक है। समय पर आपको मैं और बताती हूँ आपका जो एरर्स है। ओके। राइट मैम। पिनाकिन जी, आप लेट मुझे मैडम की मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। एक हाँ मिनट, हाँ। आप सब सुनिए। अगर आप में से किसी को भी मैडम के थीसिस स्टडी में पार्ट लेना है तो आप चैट पे अपना नाम, नंबर और लोकेशन चैट में लिख दीजिए, तो मैडम ठीक है, और ठीक है, मैं और ठीक। मैडम बैठ के आपको कांटेक्ट बैक करेंगे। जिनको भी ये पूरा फ्री में थीसिस स्टडी हो रहा है, आपको एक भी रुपए का खर्चा नहीं है। इससे आपको पता चलेगा आपका कितना परसेंटेज। मैडम आप बता दीजिए ये थीसिस स्टडी के बाद आप इनको क्या क्या बताएंगे। जस्ट टेल देम प्लीज। हाँ, आप जिसको भी मेरे थीसिस स्टडी में पार्ट लेना है, जैसे मैंने बोला कि मेरे थीसिस स्टडी का पार्ट है कि मैं एक टेस्ट बना रही हूँ जिसमें बहुत सारे साउंड के पेयर्स हैं और वो आपको रीड करने हैं। हिंदी में है, सारे आसान आसान शब्द है। तो वो आप रीड करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन से साउंड में क्लैरिटी में इशू है। और उसके साथ छोटा सा एक टेस्ट भी करेंगे जहाँ पे आपका सब मसल का थोड़ा थोड़ा मूवमेंट वगैरह मैं देखकर चेक करूंगी। ठीक है, ये कंप्लीटली फ्री है, किसी को कोई पैसे भरने नहीं है। मैक्सिमम टाइम लगेगा शायद 30, आधा घंटा या 40 मिनट लगेगा। आपके स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है रीड करने तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। वरना 30 मिनट्स या 25 मिनट्स, 20 मिनट्स में हो जाएगा फिनिश टेस्ट। जिसको भी मेरे ये स्टडी में पार्ट लेना है, प्लीज ये चैट में उनका नाम, नंबर, लोकेशन जैसे मिस्टर पिनाकिन ने बोला है वो शेयर कर दीजिए। मेरे यहाँ की फीजिबिलिटी, मैं गोरेगांव में रहती हूँ, नायर हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में है। तो मेरे स्केड्यूल में अगर बैठता है तो मैं आपको पर्सनली आकर विजिट करूंगी। वरना मैं ऑनलाइन सेशन में आपका कंडक्ट कर सकती हूँ ये टेस्ट। ओके। और किसी और को कोई। और आप अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ अपनी बीमारी का नाम भी बताइए। श्योर श्योर। हाँ बोलिए, ठीक अनामिका है, मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट करना है। अनामिका जी अनम्यूट कीजिए। तब तक देवेंद्र जी का क्वेश्चन है, मैम व्हाट वाज द सेकंड डिवाइस दैट यू सेड। अच्छा, चैट पर क्वेश्चन आया है क्या, एक मिनट। हाँ, पीरोमीटर बताया और फिर दूसरा। स्पायरोमीटर के बाद मैंने ईएमएसटी बोला, ईएमएसटी मैं चैट पर लिख देती हूँ, एक मिनट। हाँ, लिख दिया मैंने। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, देवेंद्र जी हमारे रिवर्सल वाले बंदे हैं जो रिवर्स हो रहे हैं। अमेजिंग, सुनकर खुशी हुआ। अभी जो मैं ओके अपनी मिश्रा फोटो जी। दिखाया वही है ना। हाँ, मैंने फोटो देखा ना, वही अमरावती से देवेंद्र कुमार राजेश का। कुमार ही है, कुमार। हेलो हेलो। अभी मिश्रा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी बोलिए। मैडम, ठीक है। ये अनामिका मिश्रा मेरी वाइफ हैं और इनको नमस्ते। भी गड़बड़ एमएनडी का इशू है। और ये पिछले साल से मैंने इनको सिम्टम तो स्टार्ट हो गया 2024 जून जुलाई में। और ये पिछले साल मई में जाकर के डिटेक्ट हुआ, मैंने करीब एक साल के बाद। आवाज इनका प्रॉब्लम आवाज से ही डिस्टर्ब हुआ, मैंने आवाज थोड़ा थोड़ा जो है लंबा लंबा वर्ड में थोड़ा दिक्कत हो रहा था।
हालांकि हम लोग इस बात को जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो है बाद में ही बोलती थी तो हम लोग ले गए दिखाए डॉक्टर को, ठीक है। और वो माने ये माने पता चलते चलते 1 साल लग गया, और पिछले साल जून जुलाई में माने मई में जा करके इनको ये हुआ। अब इनका आवाज बहुत ही अनक्लियर रह गया है, ठीक है। और भी थोड़ा सा पैर में भी वीकनेस का इशू है, हालांकि चलती फिरती हैं, लेकिन आवाज में दिक्कत है। इसके अलावा जो है स्वालोइंग का प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा था, वो अभी कुछ ठीक है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो जरा वेरी सही से आप बात कीजिए, देखिए कि क्या है। तो अच्छा, आप अनामिका जी आपका अपना, नाम बोलेंगे मुझे? मेरा नाम संजीव कुमार पांडे है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपके वाइफ से बात कर रही हूँ मैं। मिश्रा। नहीं नहीं, उन्हें अब जवाब देने दीजिए। मेरा नाम आर्या है। अच्छा, आप 1 से 20 तक गिनती करेंगे? ए, यू, हिन, आ, मैं, ह, आ, नो, न, आ, ओके, ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट अभी रखा है, आवाज का प्रॉब्लम। अभी मैं आप ये सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। अ, आवाज में और बोली में फर्क होता है। आवाज जो होता है हमारा, यहाँ पर जो स्वर नड़ी होता है, इंग्लिश में वोकल फोल्ड्स बोलते हैं, उसके कारण आवाज जो खराब हो जाता है, पतला हो जाता है, या रफ हो जाता है, हवे जैसा हो जाता है। तो आवाज में खराबी और बोली में खराबी दोनों अलग अलग। आवाज में खराबी होने का मतलब है, अभी आपने मिस्टर पिनाकिन शाह का आवाज सुना है, तो वो आवाज में जो तकलीफ होता है उसको ये बोलते हैं। लेकिन जो अभी अनामिका मिश्रा जी ने बात किया है मुझसे, उनके आवाज में ज्यादा तकलीफ नहीं है, उनके बोली में तकलीफ है, यानी कि उनके जो मसल साथ में काम कर रहे हैं उसके स्पष्टता में फर्क पड़ रहा है, उसके उसका जो स्पष्टता है वो कम है। बराबर? ये ये अच्छा, आप लंबा सांस लेंगे और कंटिन्यूअसली आ बोलेंगे अनामिका जी। ऐसे बोलिए। आवाज आ नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। और एक बार बोलेंगे। आवाज आ रहा है। आपका आवाज हेलो। आ रहा है, इनने जो आ कंटिन्यूअसली बोला उसका आवाज नहीं है। ओके, ठीक है। अभी आप 1 से 5 तक गिनती कीजिए, और हर बार आपको आपका आवाज बढ़ाना है, ठीक है? कैसे करना है मैं पहले करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। 5 एकदम ऊपर, यानी कि 5 पूरे कमरे में गूंजना चाहिए, और एक एकदम हल्का, एकदम सॉफ्ट। ठीक है, कोशिश कीजिए। ए, दो, तीन, आ, पाँच, वेरी गुड, और एक बार कोशिश कीजिए। धीरे से बढ़ाओ। ए, दो, तीन, आ, पाँच। ओके, अभी जैसे कि हमने देखा, आपका आवाज जो है आप बढ़ा पा रहे हो, लेकिन ज्यादा कंट्रोल नहीं है आपकी आवाज पे, यानी कि जब मैं धीरे 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 हर वॉल्यूम पर बढ़ाने बोल रही हूँ 1 से 5 तक, आपका एक सॉफ्ट रह रहा है और 5 अचानक से बढ़ रहा है। आपका 2, 3, 4 वाला जो नंबर है उसका वॉल्यूम एक जैसा रह रहा है। तो हमें किस चीज पर काम करना है? आपके आवाज के कंट्रोल पर। ठीक है? तो आप जब बातचीत करते हैं तो आपका वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है हर बार एक जैसा नहीं रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो ये सब चीजें हमें थेरेपी में काम करना है। ठीक है? ऐसी सेम चीज मैं आपके बोली पर भी करूंगी, लेकिन उसका पूरा टेस्ट है, तो वो आपके साथ अलग से मैं जब सेशन करूंगी तभी वो टेस्ट मैं आपको बता दूंगी। ओके? जी। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, आप में से जिनको इनके थीसिस स्टडी में पार्ट लेना है, आप अपना नाम, नंबर, बीमारी का नाम और लोकेशन चैट पे लिखे या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं मैडम को सब कुछ फॉरवर्ड कर दूंगा। मैडम आपके से टाइम निकाल के ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो आपके साथ ये पूरा थीसिस स्टडी करेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी सामने सामने बता देंगे। मैं आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस चीज पे काम करना है। तो आप, धन्यवाद। अभी पूनम मैम आपको बोलना पूछना है, वीडियो ऑन करके अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ। नमस्ते, बोलिए।
आ, अरे आवाज कभी कभी आवाज आ, आवाज 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 में हाँ बोलने जी में तकलीफ है, ये बोलना चाहते हैं हाँ आप? हाँ हाँ जी ओके ठीक है। हाँ आप जैसे कि अभी हमने अनामिका मिश्रा जी का छोटा सा जांच किया था, और भी हम भाग करेंगे। हाँ हम आपका जब जांच करेंगे तभी हमें ये सब देखना है आपके सांस में कोई लेने में तकलीफ है कि नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी बात करते हैं उसका मेन पावर हाउस या मेन जो एनर्जी सोर्स होता है वो हमारा लंग्स या हमारा सांस होता है। तो सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना है हम। ठीक है, सांस लेना, आवाज ना यहाँ से निकलना, आवाज का तकलीफ, बोली का तकलीफ, निगलने का तकलीफ। ठीक है, ये चार अरे चीजों पर हमें ध्यान देना है। और बोली पर भी अलग अलग चीजें हैं, उसके भी काफी लेवल्स है, लेकिन मेन जो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, आपको निगलने में तकलीफ अरे लगता है क्या? हाँ ठसका लगता है जब हाँ आप पानी पीते हो तो? हाँ लगता है? हाँ उसका थेरेपी चालू है क्या आपका, निगलने का? हाँ हाँ ओके ठीक है, उसका कंटिन्यू कर लीजिए। कहाँ से है आप? मुंबई से ही है? वह बन जाओ बन जाओ वृंदावन? बन जाओ बन जाओ या पंजाब से। पंजाब से? अच्छा ठीक है, तो पंजाब में आप थेरेपी ले रहे, कंटिन्यू कर रहे, करें? हाँ ओके ठीक है। अब उन वहाँ के थेरेपिस्ट आपको ऑलरेडी बोलते होंगे कि आपको किस किस चीजों से कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, जीभ का, होठ का, बराबर? हाँ, तो वो सब आप कंटिन्यू कर लीजिए। आपको और थोड़ा सा डिटेल में मेरे स्टडी में जब आप पार्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये साउंड में आपको और भी ज्यादा काम करना है। ठीक है, ओवरऑल मुंह से थूक भी गिरता है थैंक यू। आपका? ओके ठीक है, मैं आगे देखूंगी आपके जब मैं सेशन करूंगी अलग से सिर्फ आपके साथ, तभी आपको और बताऊंगी। ओके, यस मिस्टर, वेलकम वेलकम। यस मिस्टर देवेंद्र कुमार। बात ये है कि ये जो ग्रुप में लोग बोलते हैं आप कहाँ से है, सो अगर पंजाब से है कोई तो जो बड़ा सिटी रहता है उसमें एक्सपर्ट स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल रहते हैं। आपका वॉइस ब्रेक हो गया, बड़ा सिटी रहता है तो? बड़ा सिटी है तो एक्सपर्ट स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं। अगर छोटा सिटी है तो एक ही रह सकता है और दो रह सकते हैं, और उनको भी इतना स्पेशलाइजेशन नहीं रहता। एक्चुअली स्पीच थेरेपी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन आप बात कर रहे हैं, हम मास्टर्स जो करते हैं, मास्टर्स में बैचलर्स में जो भी पढ़ते हैं, हम सारे डिसऑर्डर्स को एक साथ पढ़ते हैं। उसके आगे कोई कोई स्पीच थेरेपिस्ट कोई कोई डिसऑर्डर्स में ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, ऐसा होता ही है। लेकिन ओवरऑल एक आइडिया रहता ही है। अभी इनफैक्ट आप बोल रहे हैं कि अगर स्पीच थेरेपी में एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो वो सबका वेरी करता है, सबका एक्सपीरियंस वेरी करता है। लेकिन सब एक प्लान जो है वो लेकर ही बैठते हैं कोई थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, तो उसका इतना टेंशन नहीं है। अदरवाइज आपको अगर और बड़े शहर में और एक्सपीरियंस वाले थेरेपिस्ट वगैरह जो आप कंसर्न बोल रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन थेरेपी कितना पॉसिबल है, जहां पर कि आप जो भी आपको चाहिए वो आप वो थेरेपिस्ट आपको ऑनलाइन, जैसे कि अभी मैंने जूम लिंक किया है, ऐसे गूगल लिंक भी होता है, अलग अलग व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी करते हैं। कोई कोई इंस्टीट्यूट का उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू वो थेरेपी देते हैं। ऐसे काफी ऑनलाइन ऑप्शंस अभी है अवेलेबल जिसके थ्रू थेरेपी दिया जाता है। मैडम उसमें और एक प्रॉब्लम है। बोलिए। जैसे ये पेशेंट है, एमएनडी वाले हैं, हाँ, मोटर न्यूरॉन डिसीज। करेक्ट। मैं जब यहाँ पर कुछ अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, जैसे गैस्ट्रो वाले की तरफ से और दूसरे की तरफ से, तो वो डॉक्टर को भी एमएनडी मालूम नहीं था। इसलिए मेरा कहना यह है कि वो स्पीच थेरेपिस्ट को भी मालूम होना चाहिए कि ये एमएनडी। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि इनिशियली वो स्पीच थेरेपिस्ट को पता नहीं था एमएनडी के बारे में? हुआ था अक्सर नहीं रहता छोटे सिटी में।
ओके, ऐसा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। ये सर बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को ये बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। ये बहुत रेयर अच्छा। बीमारी है और ज्यादा इंटरनल सिटीज में, C क्लास D क्लास सिटीज में, वहाँ पे ज्यादा स्पीच थेरेपिस्ट को इसके बारे में नहीं पता। उनको नॉर्मली पैरालिसिस या लकवा या पार्किंसन के बारे में पता होगा और या स्ट्रोक के बारे में पता होगा। इसके अलावा उनको पता नहीं होता। ये नहीं, द उनका थिंग कहना इज है। कि ये पता तो होता है क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये सारी चीजें आते हैं, लेकिन ये डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए काफी जांच होता है क्योंकि आपको पता है कि ये डिसऑर्डर जो है काफी प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये बढ़ते रहता है। तो शुरुआत में अगर वो MRI CT स्कैन में नहीं आता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो क्लियरली दिखता है, तो वैसे उसको डायग्नोस करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि उसके सिम्टम्स कभी माइल्ड होते हैं तो कभी ज्यादा होते हैं। तो उसके कारण इनिशियली वो डायग्नोसिस देना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनिशियली जो स्पीच थेरेपिस्ट देखते हैं वो जैसे कि हर 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 डोमेन में असेस करते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें ही गलतियां दिखते हैं, लेकिन कुछ महीनों में अगर प्रॉब्लम बढ़ता रहता है तभी डायग्नोसिस और क्लियर हो जाता है। तो शुरुआत में ही इसलिए डायग्नोसिस नहीं देते क्योंकि MRI CT स्कैन पर हम काफी रिलाई करते हैं। तो वो रेडियोलॉजिस्ट और SLP दोनों का एक साथ जो कोलैबोरेशन होता है, उस डिस्कशंस होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है। तो ये एक वजह हो सकता है। दूसरा, अवेयरनेस कॉमन लोगों में जो है, ये ऐसा चीज होता भी है, इसके लिए स्पीच थेरेपी किया जाता है, वो थोड़ा कम है। तो उसके लिए काफी अवेयरनेस के लिए, जैसे कि मिस्टर पिनाकिन ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके अवेयरनेस के लिए ऐसे मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। ऐसे काफी प्रोग्राम्स अभी भी चालू है जिसके कारण काफी लोगों तक अभी पहुंच रहा है, पहले वो पहुंच नहीं था। तो उसके कारण भी, ये अवेयरनेस के कारण भी हो सकता है प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज आपको आपको अगर ऑप्शंस चाहिए तो ऑप्शंस काफी अवेलेबल है, बड़े शहर में भी छोटे शहर में भी। अब थोड़ा सा टाइम लगता है मे बी छोटे शहर में वो फैसिलिटीज वगैरह एक्सेस करना, कुछ कुछ चीजें डिवाइसेस एक्सेस करना शायद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है, थेरेपी इफेक्टिवली भी हो जाता है। काफी क्लिनिक्स तो अभी छोटे शहरों में भी काफी नंबर अभी बढ़ गए हैं उसके। और आजकल ऑनलाइन के जमाने में ऑनलाइन हो सकता है, तो आप करेक्ट। बड़े शहर वाले थेरेपिस्ट से भी सलाह ले सकते। और आज टाइम की कमी के कारण मैं मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैम, एक बार बता दीजिए, सब चैट पे डाल दीजिए जिनको करना है। ओके, अभी मैं चैट ही चेक कर रही थी, मुझे अनामिका मिश्रा जी का आया है, सुदीप्ता रुद्र का आया है और सुजीत परदेशी, ये तीनों का आया है कि उनको मेरे स्टडी में पार्ट लेना है। संदीप सुतपुते, सतपुते जी, उन पूनम मेहता, इन आपका नंबर नहीं आया है, नंबर मैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। ओके ठीक है, संदीप जी का आ गया। ओके, पूनम जी आप भी भेज दीजिए। खाली बात उनकी होशियारी आई वाली है। और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम, यू टेक आउट टाइम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगले महीने आपको जब टाइम मिले हमारे पूरे ग्रुप को एक बार स्पीच थेरेपी और swallowing थेरेपी बताइए। अब जब फ्री होंगे हम आपके इस थेरेपी के लिए ऑनलाइन रेडी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन ज्वाइन होने के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी अपना नाम नंबर भेज सकते हो। मैडम की थीसिस और स्टडी में आपका नाम नंबर ऐड किया जाएगा। बारी बारी से हम आपको रेगुलर कांटेक्ट करेंगे। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना स्पीच में क्या क्या आगे कर सकते हो। तो थैंक यू रेवती मैम अगेन फॉर योर, एंड विश यू ऑल द फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड आप सबको भी थैंक यू, आपने आपके स्केड्यूल में से टाइम निकाला, मेरे थीसिस के बारे में जानकारी ली, आपने क्वेश्चंस पूछा। अब मैं चाहती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस में वन ऑन वन प्रॉपरली और सॉल्व कर सकूं।
और उसके आगे भी अगर आपको कुछ स्पीच थेरेपी या swallow थेरेपी, वॉइस थेरेपी में कुछ भी आपको अगर डाउट है तो अब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच सबको। धन्यवाद। थैंक यू मैम। यश